Hello everyone, welcome to EduSoft. So today we are going to start on a very interesting topic that is generative AI, generative artificial intelligence. So generative artificial intelligence is a broad term that means any type of artificial intelligence that can produce text, images, videos and audios. So what we will going to cover in this whole course, we will going to cover about the introduction to generative AI, explanation of how generative AI works, difference between artificial intelligence and generative artificial intelligence, applications of generative artificial intelligence, and the tools of generative artificial intelligence. So what are the tools we will going to cover in this session? हम इस सेशन में कौन कौन से टूल्स देखने वाले हैं? चैट जीपीटी, बिंग एआई, ग्रेविटी राइट, स्टीव एआई. So these are all the tools which we are going to cover in this session. What we will going to learn in this session? हम इस सेशन में सीखेंगे कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम करती है, क्या मॉडल्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एंड कौन कौन से टूल्स हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सो कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट वन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It is the subset of artificial intelligence that helps to create new artificial data, that is, images, videos, text, and music. तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक न्यू आर्टिफिशियल डेटा को क्रिएट कर सकते हैं. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी आपका कंटेंट क्रिएट होता है वो टोटली न्यू कंटेंट होता है, एक न्यू आर्टिफिशियल डेटा होता है. और वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियोस के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे आपका ईमेल हो गया, आप ईमेल भी लिखवा सकते हैं, आप आर्टिकल पे वर्क भी कर सकते हैं. You can work on storytelling also. And the very last one, that is music. So while exploring on this topic of generative AI, two very most important questions we came across. Number one, what is artificial intelligence? Artificial intelligence क्या होती है? And the second most important question is, what is the difference between artificial intelligence and generative artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सो कमिंग टू वेरी फर्स्ट वन, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to computer systems capable of performing tasks that historically required human intelligence. Artificial intelligence, it uses computer programming to do tasks that a human would otherwise do. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो टास्क ह्यूमंस कर सकते हैं वो हम एज अ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को देते हैं एंड कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म करते हैं. तो उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग. नाउ कमिंग टू अनदर वन, दैट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड means where machines learn to create new content rather than just following the predefined rules. Generative artificial intelligence works on unsupervised learning and generative models. So generative artificial intelligence learns pattern from training data and then generate unique output. So we can say that generative artificial intelligence refers to deep learning models. Unlike traditional softwares that relies on instructions, generative AI models learns patterns from existing data and then generate content based on these patterns. Let's say it takes data from Wikipedia and then what it will do? It will learn from it and then generate content. These new content will be audios, quotes,
It could be anything. It could be images. It may be text like an article, email, or an essay, or any paragraph. So this is the basic difference between artificial intelligence and generative artificial intelligence. So coming to next one, what are the applications of generative artificial intelligence? Generative artificial intelligence की क्या-क्या applications होती हैं? So generative artificial intelligence has a wide range of applications across different industries. And वो industries कौन-कौन सी हैं? Number one is healthcare. Artificial models could generate new drugs by predicting molecular structures with desired properties. We can also work on the field of personalized treatment plans based on patient data and genetic information. Number second is education. Education with scientific research. AI models can help in simulating complex physical phenomena and can help in accelerating scientific discoveries. Number third one is architecture. We can create AI-assisted architectural designs, interior layouts, and urban planning. Generative artificial intelligence has a wide range of applications in the field of agriculture and map development also. So these are all the applications of generative artificial intelligence. Coming to next one. Generative AI has the potential to revolutionize many sectors from healthcare to education to gaming sectors. So we divide the generative AI tools according to our needs. Number one is text-based. So in text-based generative artificial intelligence, what are the tools which we have? We have ChatGPT, we have Paraphraser, Scribble Text, Summarizer, Bard, Bing AI, and DeepL Translator. For video-based, we have Make a Video and Zen 2. For code-based, we have OpenAI Codex, ChatGPT, and Bing AI. So we divide the generative AI tools according to our needs, which we will going to work on. Like if I want text-based generative AI tool. So what we have ChatGPT, Bing AI. If I want a video-based generative AI tool, then I have Make a Video. If I want a code-based generative AI tool, then what I have OpenAI Codex, I have ChatGPT, and I have Bing AI. So coming to next one, what are the tools for generative AI? यहाँ पे हमारे कुछ और भी tools हमें देखने को मिलेंगे. Number one is ChatGPT. It is a chat-based artificial intelligence tool. Number second is Tal.e2. It is a text-to-image generator. Number third one is Bing AI. It is also a chat-based. Number fourth is Waveformer. It is a text-to-music generator. The last one is Pika Labs AI. So it is a text to video generator. So अगर मुझे text से music generate करना है, so what is the AI tool? We have Waveformer. ऐसे ही अगर मुझे text पे काम करना है, so I have ChatGPT, I have Bing AI. So these are some of the tools of generative artificial intelligence. So coming to next one. What are the pros for generative artificial intelligence? Number one is enhanced creativity. Number second, synthetic data. Number third, personalized content. So generative artificial intelligence offers several benefits over different sectors. Generative artificial intelligence automate the creation of content by which we can save time and resources. Generative artificial intelligence creates content based on individual preferences, customized recommendations, contents, and services. Coming to next one, what are the cons for generative artificial intelligence? Data privacy and security, limited creativity and innovation. So generative AI can create deepfakes, misinformation, and harmful content if not used properly. Measuring the quality of generated content in generative AI is very tricky. So there is limited creativity and innovations in the tools we are using for generative artificial intelligence.
So here is the main question comes that how we can ensure ethical use of generative artificial intelligence. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल यूज हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं. So ensuring the ethical use of generative artificial intelligence is very important to prevent harmful consequences and to promote innovations. Number one is developers should maintain transparency in artificial intelligence systems. We should continuously monitor artificial intelligence systems in productions. We should collect user feedback to improve models, work on considering ethical principles, legal compliance, and societal impact. So these all are the points which we can use and which we can maintain to ensure ethical use of generative artificial intelligence. Here we finish the introduction part of the generative artificial intelligence. Now in second part, what we will going to see about the different tools we can use for generative artificial intelligence. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी पे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी क्या होती है. इट इज एन एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल developed by OpenAI. ChatGPT can answer questions and assist us with tasks such as composing mails, writing essays, articles, paragraphs, poems, and quotes, and many more things. So, coming to ChatGPT, what you will have to do, you will have to write ChatGPT, and here on this, you have to click on this ChatGPT. इसके बाद जो आपकी ओपन एआई यानी चैट जीपीटी की जो होम पेज है वो आपके पास ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं गेट स्टार्टेड. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने अगर ऑलरेडी साइन इन कर रखा है तो आप लॉग इन कर सकते हैं या आप साइन अप कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगी तो आप अपने गूगल अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं. लाइक इन दिस कंटिन्यू विद गूगल. सो तो ये हमारा चैट जीपीटी का होम पेज है. चैट जीपीटी हमारे पास दो फॉर्म्स में है. नंबर वन चैट जीपीटी 3.5 टर्बो जो कि फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है. सेकंड जो हमारे पास है चैट जीपीटी 4, दिस इज अ पेड सब्सक्रिप्शन और इसको हम चैट जीपीटी प्लस बोलते हैं. सो जो चैट जीपीटी है इसका हमारे पास ऑफिशियल ऐप भी है जिसको आप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में यूज कर सकते हैं. चैट जीपीटी किस पे वर्क करती है, किस मॉडल पे वर्क करती है? चैट जीपीटी LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे वर्क करती है. चैट जीपीटी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास टेक्स्ट हो गए, मेल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, या आप कोई गाइडेंस भी ले सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू. आप अपने मैनेजमेंट प्लान पे भी वर्क कर सकते हैं. आप एक बेसिक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में भी हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू. अब यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे. यहाँ पे आपके पास जो भी आप यहाँ पे मैसेज देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं. यानी जो भी हम इनपुट देते हैं ऐसा टेक्स्ट की फॉर्म में हम चैट जीपीटी में इनपुट देंगे जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे. तो जो हमारे पास हमारा प्रॉम्प्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कमिंग टू वेरी फर्स्ट वन, अब यहाँ पे जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है यानी अपना इनपुट देना है. तो मैं सबसे पहला इनपुट देना चाहती हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस एंटर. एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चैट जीपीटी है वो हमें अपने बारे में बता रही है that I am a chat GPT, a product of OpenAI. I am a sophisticated language model built on the GPT 3.5 आर्किटेक्चर. तो ये हमारा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट था जो हमने यूज किया है. इसके अलावा हम और भी प्रॉम्प्ट पे वर्क कर सकते हैं. लाइकवाइज हम सेकंड प्रॉम्प्ट क्या देते हैं, हम सेकंड प्रॉम्प्ट देते हैं गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन प्रेसिडेंट्स विद देयर टेन्योर टाइमिंग्स. एंड हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया. और आप देख रहे हैं कि जो भी इंडियन प्रेसिडेंट्स अब तक रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके जो भी हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वहां तक हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है. और उनकी स्पेसिफिकली जो हमने मेंशन किया था कि उनका टेन्योर टाइमिंग हमारे पास आ जाए,
तो आप देख रहे हैं सारे प्रेसिडेंट के आगे क्या लिखा हुआ है कि उनका टेन्योर टाइमिंग लिखा हुआ है, उन्होंने किस डेट से स्टार्ट किया था और किस डेट को उन्होंने एंड किया था। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस जो मेरे पास जो ये लिस्ट आई है मैं इस पे और वर्क करना चाहती हूँ। अब मैं क्या प्रॉम्प्ट देना चाहती हूँ, मैं इनपुट देना चाहती हूँ, गिव मी दिस अबव लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल लाइक दिस। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो ये मेरे पास ऊपर लिस्ट आई है करेंट प्रेसिडेंट्स की, यानी जितने प्रेसिडेंट्स हमारे इंडिया में रह चुके हैं, मैं उस पूरी लिस्ट को एज अ टेबल की फॉर्म में देखना चाहती हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो भी हमें इस पे आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, हमें ये पूरी लिस्ट एक टेबल की फॉर्म में हमारे पास मिल चुकी है। अब मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यानी जो इसका ये पूरा कंटेंट है आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेल एक्सेल पे जाती हूँ, एंड यहाँ पे जाने के बाद जब मैंने यहाँ पे न्यू किया एंड न्यू के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने जो भी वहां पे टेबल कॉपी की थी, यानी जो भी मैंने कंटेंट चैट जीपीटी में कॉपी किया था, मैं यहाँ पे आके इसको इस तरह से पेस्ट भी कर सकती हूँ। तो आपके पास क्या आ गया कि आपके पास एक टेबल फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे अपियर हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने चैट जीपीटी पे वर्क कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो 16 नंबर पे इन्होंने प्रेसिडेंट का नाम लिखा है वो रामनाथ कोविंद जी का नाम लिखा है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है करेंट एज ऑफ माय लास्ट नॉलेज अपडेट इन जनवरी 2022। तो यहाँ पे जो इनकी जो टेक्स्ट अपडेट हुआ है, यानी जो इनकी नॉलेज अपडेट हुई है वो 2022 की अपडेट हुई है। तो जो हमारी लिस्ट आई है वो एज पर 2022 के अकॉर्डिंग आई है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट रहेगा, हम क्या चाहते हैं, हम कोडिंग प्रोग्रामिंग यानी जो बेसिक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग है मैं उस पर वर्क करना चाहती हूँ चैट जीपीटी के अंदर। तो मुझे क्या देना होगा एज अ प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना चाहती हूँ, गिव मी अ कोड फॉर स्टूडेंट ग्रेडिंग एनालिसिस सिस्टम इन पाइथन, एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस एंटर। और आप देखिए कि जो भी आपके पास कोड रहेगा एक स्टूडेंट ग्रेडिंग एनालिसिस का, वो आपके पास यहाँ पे अपियर हो गया। तो ये आपके पास एक कोड आ गया है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एंड इसके बाद अगर आप वीएस कोड पे काम कर रहे हैं या आप जुपिटर पे काम कर रहे हैं, आप वहां पे जाके इस कोड को वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं। अब जो ये हमारे पास कोड आया है, मैं क्या चाहती हूँ कि इस कोड को मैं और सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सिंप्लीफाई दी अबव कोड। अब क्या होगा हमारे पास कि जो ये अबव कोड है ये और एक सिंप्लीफाइड मैनर में हमारे पास अपियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिटरमाइन ग्रेड, और ये काफी एक लंबा सा हमारे पास कोड आ रहा है। हम नीचे देखेंगे तो ये एक सिंप्लीफाइड मैनर में कोड हमारे पास आ गया। हम इसको कॉपी कर सकते हैं और जिस भी आइडल में हम वर्क कर रहे हैं, वीएस कोड हो गया, जुपिटर, हम वहां पे जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं और हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये हमने देखा कि हम कैसे एक टेक्स्ट पे वर्क कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर, हम कैसे बेसिक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में वर्क कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। अब जो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट रहेगा वो हम किस पे वर्क करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट एक आर्टिकल पे वर्क करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना चाहती हूँ, कौन सा प्रॉम्प्ट, राइट एन आर्टिकल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट पे काम करना चाहती हूँ और मैं एक आर्टिकल लेना चाहती हूँ ग्लोबल वार्मिंग पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से हमारे पास हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हमने क्या मांगा था, हमने एक आर्टिकल लिखने को बोला था चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे अगर आप ऊपर से स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे क्या है कि इसने टाइटल भी दे रखा है। टाइटल क्या है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो आपका जो आर्टिकल है ग्लोबल वार्मिंग पे, उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल मिल गया, आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया। फिर यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड हमारे पास है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनको भी यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक पूरा आर्टिकल ग्लोबल वार्मिंग पे हमारे सामने आ चुका है।
लास्ट में कंक्लूजन भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और हम जहां पे भी हमको ये आर्टिकल पेस्ट करना है वर्ड में या नोटपैड पे, हम वहां पे जाके इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोई और प्रॉम्प्ट देना चाहती हूँ तो हम और कौन से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देना चाहती हूँ राइट अ शॉर्ट पोएम अबाउट द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ विंटर। तो ये हमने प्रॉम्प्ट दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक पोएम चाहते हैं किस पे, फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ विंटर पे। तो क्या चैट जीपीटी हमें कोई एक पोएम लिख के दे सकता है? यस। और आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे होंगे, एक हमारे पास पोएम आ चुकी है। इन द हश ऑफ विंटर्स ब्रेथ सो कोल्ड अ टेल ऑफ वंडर सून अनफोल्ड्स, सॉफ्ट विस्पर्स थ्रू द फ्रॉस्टी एयर अनाउंस द फर्स्ट स्नो स्टैंडर्ड फ्लेयर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस तरह से पोएम अपियर हो चुकी है, एज एन आउटपुट हमारे पास हमें मिल चुकी है। तो क्या होता है कि आप जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रॉम्प्ट जो भी दे रहे हैं उसमें क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप अपने आउटपुट में किस तरह का आउटपुट चाहते हैं, वही आपको आपके प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली मेंशन करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। Second, हमारे पास the most important thing which we can do in Chat GPT is that we can write email. हम यहाँ पे ईमेल भी लिखवा सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं ईमेल पे वर्क करना चाहती हूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट में क्या देना चाहती हूँ, राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड थैंकिंग हिम अबाउट द बर्थडे गिफ्ट, लाइक दिस। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक ईमेल चाहती हूँ, एंड दैट ईमेल इज टू अ फ्रेंड थैंकिंग हिम अबाउट द बर्थडे गिफ्ट। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पूरा ईमेल का कंटेंट है, बॉडी है, यानी सब्जेक्ट भी आपके पास यहाँ पे आपको मिल चुका है। सब्जेक्ट क्या है, हार्टफेल थैंक्स टू द वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट। हाय। अब हमने क्या किया है कि हमने फ्रेंड का नाम नहीं मेंशन किया है, हमने हमारा नाम नहीं मेंशन किया है। तो आपके पास क्या है, आपके पास ईमेल की जो बॉडी है उसका पूरा कंटेंट हमारे पास मिल चुका है। अब यही अगर मैं मेंशन करती, जैसे कि अगर मैं अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूं, राइट एन ईमेल टू सोहन थैंकिंग हिम अबाउट द बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम राहुल। अब अगर मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें पर्टिकुलरली नेम्स जो है वो मेंशन किए हैं, सोहन एंड राहुल। तो अब आप अपना ईमेल जो आपके पास आउटपुट आया है आप उसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रेटिट्यूड, सब्जेक्ट सेम है। अब यहाँ पे देखिए आप, हाय सोहन, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नेम मेंशन किया है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में नेम दिया है। तो इसीलिए जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं वो इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो पूरा ईमेल है, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और आप अपने ईमेल में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये सेम ही ईमेल, अगर जैसे ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में है, अगर मैं चाहती हूँ इसको किसी और लैंग्वेज में, मैं चाहती हूँ इसको, तो मैं क्या चैट जीपीटी में ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का जो काम है ये मैं कर सकती हूँ। ये आप कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसका नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देती हूँ, राइट अबव ईमेल और मेल इन हिंदी। तो ये मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, अब आप देखेंगे कि जो आपका आउटपुट आया है वो आपका, अब क्या है कि जो आपने ईमेल लिखने को बोला था वो हिंदी में आपके पास आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे अबव मेल किस लैंग्वेज में चाहिए, मुझे हिंदी में वो मेल चाहिए। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी में अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आप अपने प्रॉम्प्ट का एक बेस्ट यूज कर सकते हैं आउटपुट लाने के लिए। तो अब मेरे पास ये मेल क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज में मेरे पास मेरा मेल आ चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट किस पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट अगर मैं देना चाहती हूँ तो मैं अब चाह रही हूँ कि स्टोरी टेलिंग पे मैं वर्क करना चाहती हूँ, या स्टोरी लिखने पे मैं वर्क करना चाहती हूँ। तो मैं प्रॉम्प्ट कैसे दूंगी, राइट अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स लिविंग सिटीज अपार्ट।
अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक स्टोरी चाहती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके पास आउटपुट आ रहा है वो एक आपके पास स्टोरी आपके आउटपुट में आ रही है, क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, हमें प्रॉम्प्ट में क्या दिया था, हमने प्रॉम्प्ट में स्टोरी लिखने को बोला था। तो अब हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ रहा है और हमारी पूरी जो स्टोरी है वो हमारे पास आ चुकी है। वंस अपॉन अ टाइम इन दी digital age of bustling cities and interconnected lives, there are two friends named Aisha and Maya. अब चैट जीपीटी ने क्या किया कि हमने जो फ्रेंड्स है उनके नाम मेंशन नहीं किए, तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि अपने ही आप उनके नाम ले लिए हैं और आपको एज एन स्टोरी, आपको एक स्टोरी आपके आउटपुट में दे दी है जो आपने प्रॉम्प्ट में उससे मांगी थी। राइट अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स लिविंग सिटीज अपार्ट। तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट का एक बेहतर यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी में, अगर आपको आउटपुट अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो। नेक्स्ट ऐसा कौन सा प्रॉम्प्ट है जिसपे हम चैट जीपीटी में और वर्क कर सकते हैं? अब जैसे कि ये हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है अब चैट जीपीटी का, इसके बाद हम चैट जीपीटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम हमारे नेक्स्ट जनरेटिव एआई के टूल्स पे आएंगे। अब जो हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है हम उसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे कि अगर मैं लिखना चाहती हूँ, मैं प्रॉम्प्ट क्या देना चाहती हूँ, मैं प्रॉम्प्ट देना चाहती हूँ इन्वेंट अ हॉलिडे विथ इट्स ओन ट्रेडिशंस, रिचुअल्स। अब यहाँ पे हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, हमने प्रॉम्प्ट दिया था इन्वेंट अ हॉलिडे विद इट्स ओन ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। तो क्या है, चैट जीपीटी को एक हॉलिडे इन्वेंट करनी है। अब इन्होंने हॉलिडे का नाम भी हमें दिया हुआ है ल्यूमिना फेस्ट करके। डेट क्या दी हुई है, द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी नवंबर, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो भी हॉलिडे। तो अब क्या हुआ है कि ऐसी हॉलिडे अब तक नहीं है, ये हॉलिडे चैट जीपीटी ने इन्वेंट किए, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया था कि हम एक न्यू हॉलिडे इन्वेंट करें जिसका खुद का एक ट्रेडिशन और एक रिचुअल्स। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी में वाया टेक्स्ट वर्क कर सकते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रॉम्प्ट का पार्ट होता है। आप जिस तरह से इनपुट यानी आप जिस तरह से प्रॉम्प्ट देते हो आपको वैसा ही आउटपुट मिलता है। आपको आउटपुट में जो जो चीजें लेके आनी है, जो भी आपका मेन फोकस रहेगा आउटपुट में, वही आपको एज इन कीवर्ड्स आपको अपने प्रॉम्प्ट में देना होता है। तो चैट जीपीटी 3.5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा जनरेटिव एआई टूल है जिसपे हम वर्क करने वाले हैं वो कौन सा है, वो ग्रेविटी राइट है। नाउ वी विल गोइंग टू सी ग्रेविटी राइट जनरेटिव एआई टूल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एआई टूल दैट इज ग्रेविटी राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रेविटी राइट टॉप एआई राइटर कंटेंट जनरेटर। तो हम ग्रेविटी राइट को क्यों यूज करते हैं, कंटेंट जनरेटर के लिए हम इसको यूज करते हैं। व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू लॉग इन टू स्टार्ट इट। मैंने यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया, इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। मैंने गूगल अकाउंट से साइन इन किया और ग्रेविटी राइट का जो हमारा होम पेज है वो हमारे पास अपियर हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं ग्रेविटी राइट में कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम ग्रेविटी राइट के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ब्लॉग टूल्स हो गया, इमेज प्रॉम्प्ट्स, सोशल मीडिया टूल्स, राइटिंग असिस्टेंट, यूट्यूब टूल्स, email tools, advertising tools, e-commerce, extras. We have copywriting tools, and the very most important according to me is the book writing. आप क्या कर सकते हैं, आप एक बुक को भी राइट कर सकते हैं, आप एक बुक लिख सकते हैं। बुक के आपको क्या हेडिंग लेनी है या आपको क्या कंटेंट लेना है, आप चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन भी इससे ले सकते हैं ग्रेविटी राइट के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे पास टूल्स हैं लाइक फिल्म मेकिंग टूल्स, म्यूजिक टूल्स, वेबसाइट कंटेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ बुक राइटिंग पे, तो बुक राइटिंग के बाद अब क्या हुआ, मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए लाइक बुक आइडिया जनरेटर, बुक टाइटल जनरेटर, बुक आउटलाइन जनरेटर एंड बुक चैप्टर समराइजर। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बुक आउटलाइन जनरेटर। अब जब मैंने बुक आउटलाइन जनरेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट पेज आपके पास ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर बुक, कि आप अपने बुक का क्या टाइटल रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने बुक का टाइटल रखना चाहती हूँ एड्यू कोड,
एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप अपने बुक के बारे में बताएं एक दो सेंटेंस में। और यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो अब मैं अपने बुक के बारे में क्या क्या बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ अबाउट जनरेटिव एआई एंड इट्स टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि जो मेरी बुक है उसमें मैं क्या लिखवाना चाहती हूँ या मैं अपनी बुक में क्या रखना चाहती हूँ और मेरी बुक का क्या टाइटल होगा। उसके बाद हमने क्या किया, क्रिएट कंटेंट किया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आपका आउटपुट है वो आपके पास अपियर हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारी बुक थी एड्यू कोड, तो बुक का हमारा टाइटल क्या था, एड्यू कोड हमारी बुक का टाइटल था। बुक की क्या आउटलाइन रहेगी, इन्होंने क्या किया, चैप्टर वाइज हमें उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, एक बुक की आउटलाइन हमें जनरेट करके दे दिए। चैप्टर 1 जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, फंडामेंटल्स ऑफ जनरेटिव एआई। चैप्टर 3 आपका हो गया, चैप्टर 4 आपका, चैप्टर 6, 7 एंड 8, चैप्टर 8 इज अबाउट द कंक्लूजन। तो इस तरह से आप ग्रेविटी राइट का एक प्रॉपर यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसपे हम वर्क कर सकते हैं वो हमारे पास हो गया लाइक ईमेल टूल्स, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग असिस्टेंट पे भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यूट्यूब टूल्स हो गए। अगर मैं यूट्यूब टूल्स में देखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि वाईटी आइडिया कंटेंट, टाइटल एंड थंबनेल, वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। अगर मैं वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर। दिस टूल विल हेल्प यू टू जनरेट अ engaging YouTube video script based on a given title and the given prompt। तो अब हमारे पास इसमें क्या लिखा आ रहा है, एंटर योर वीडियो टाइटल एंड द पॉइंट्स यू वांट टू कवर। अब हमें क्या है कि हमें स्क्रिप्ट लिखवानी है यूट्यूब के लिए, तो यहाँ पे हमें वीडियो का टाइटल देना है। वीडियो का टाइटल मैं देना चाहती हूँ फन फैक्ट्स। एंड इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एंड द पॉइंट्स यू वांट टू कवर, आप कौन कौन से पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ टॉप 25 फन फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अ कंटेंट। यहाँ पे आपके पास मोर सेटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप मोर सेटिंग में जाके आप इसकी और भी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पे वाईटी स्क्रिप्ट जो कंटेंट है वो आपके पास आपको मिल चुका है। आप इसका यहाँ से आप इस पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकती हूँ, मैं इसका फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं बोल्ड फॉन्ट में कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको टैलिक फॉन्ट में भी कर सकती हूँ। तो ये क्या है, ये आपके पास आपको वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर के अंदर आपके पास आपकी स्क्रिप्ट मिल चुकी है। तो ऐसे ही आप ग्रेविटी राइट के अंदर और भी जो टॉपिक्स हैं उन पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके अलावा और टॉपिक्स हो गए ईमेल टूल्स, ई कॉमर्स टूल्स, एंड वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन ब्लॉग टूल्स हेयर। अगर मैं ब्लॉग टूल्स में देखूं तो मैं किस किस पे काम कर सकती हूँ, ब्लॉग टॉपिक आइडियाज, ब्लॉग आउटलाइन, ब्लॉग कंटेंट, इमेज ब्रीफ फॉर ब्लॉग। इस तरह से मैं ब्लॉग कंटेंट पे भी काम कर सकती हूँ। तो ये ग्रेविटी राइट का जो आपका एआई टूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हैं ग्रेविटी राइट के अंदर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एआई टूल दैट इज स्टीव डॉट एआई। तो ये जो टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हम क्यों यूज करते हैं, दिस टूल इज यूज टू क्रिएट वीडियोस यूजिंग टेक्स्ट। Steve.ai is a platform that lets you to convert text into live videos using AI technology। तो हमें क्या करना होगा, Steve.ai पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद आपके पास इसका जो होम पेज है वो आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्रिएट वीडियोस विद एआई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे कि यहाँ पे ये पेज आपके सामने अपियर हो रहा है, आप गूगल से यहाँ पे साइन इन भी कर सकते हैं। अब स्टेप डॉट ए आई, वॉट काइंड ऑफ वीडियोज डू यू वॉन्ट टू क्रिएट, आपको किस तरह की वीडियोज क्रिएट करनी है, एक्सप्लेनर, कोर्सेज, एजुकेशनल, इंटरनल, कम्युनिकेशन, प्रमोशनल, सोशल मीडिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज होते हैं जो आप स्टीव ए आई टूल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनर लिखा है कि मुझे एक्सप्लेनर वीडियोस यहाँ से क्रिएट करनी है। आपका गोल क्या है? क्रिएट फॉर योर बिजनेस, रीसेल एज अ पार्ट ऑफ द एजेंसी। एंड जैसे मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्रिएट करनी है, एंड देन व्हाट सोलो, एंड आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रोल एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड वेयर डू यू पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट योर वीडियोज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनल टीम्स। एंड यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। एंड सबमिट करने के बाद क्या है कि जो भी आपका एआई स्ट्रीप का होम पेज है वो आपके सामने अपियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रीप एआई जो आर्टिफिशियल टूल है उसका होम पेज हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रिएट डैशबोर्ड, माय प्रोजेक्ट, शेयर्ड विद मी, मैनेज एक्सपोर्ट्स एंड माय वर्क स्पेस। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो वीडियो है मुझे उस वीडियो को क्रिएट करना है। इसमें क्या है, इसमें कुछ आपके पास फ्री टूल्स भी हैं और कुछ आपके पास पेड टूल्स भी हैं। वॉट यू विल डू, यू विल हैव टू सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे लाइव वीडियो का ऑप्शन आ रहा था, वॉट आई वॉन्ट एनिमेशन वीडियोज। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एनिमेशन वीडियो पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जैसा आपको अपना आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नाउ व्हाट इज योर वीडियो अबाउट, आपकी वीडियो किस पे बेस्ड है, आप वो भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो आउटपुट वीडियो है स्ट्रीव एआई में, जैसे आपकी वीडियो आउटपुट में आएगी उसके लिए आपको क्या प्रॉम्प्ट देने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीन 1 लिखा आ रहा है, आपका जो भी प्रॉम्प्ट रहेगा वो स्क्रिप्ट की फॉर्म में आपका प्रॉम्प्ट रहेगा। तो हम जब ग्रेविटी राइट टूल पे काम कर रहे थे वहां पे हमने वाइटी स्क्रिप्ट को जनरेट किया था। दोबारा से हम ग्रेविटी राइट पे आते हैं, तो ये हमारी एक स्क्रिप्ट थी जो उस टाइम पे हमने जनरेट की थी। तो यहाँ पे जैसे कि ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इस स्क्रिप्ट को कहाँ पे पेस्ट करेंगे, स्टीव एआई जहाँ पे हमसे ये इनपुट प्रॉम्प्ट मांगा है हमने वहां पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसने क्या किया है कि उस पैराग्राफ को खुद ही सीन 1, सीन 2, सीन 3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपकी जो बाकी की पूरी स्क्रिप्ट है आप उसको यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या किया है कि पूरी जो हमारी स्क्रिप्ट है वो हमने वहां से कॉपी करके ग्रेविटी राइट से कॉपी करके हमने क्या किया है स्टीव एआई में यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर दी टॉपिक ऑफ योर वीडियो। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी वीडियो का टॉपिक एंटर करना है कि हमारी वीडियो किस पे बेस्ड है। ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, यहाँ पे टाइप ऑफ वीडियो एनिमेशन वीडियो हो गया। एंड देन हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए कि आप किस फॉर्म में अपनी आउटपुट वीडियो को देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा तो आपके पास पूरी वीडियो आ रही है। तो क्या आप इस फॉर्म में अपनी आउटपुट वीडियो देखना चाहते हैं या आप इस फॉर्म में अपनी आउटपुट वीडियो देखना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं जिससे हम जिस तरह से हम हमारी आउटपुट वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी आउटपुट वीडियो इस तरह से। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो आपकी वीडियो है वो जनरेट हो रही है। इट विल टेक सम फ्यू सेकेंड्स टू कन्वर्ट। तो जो आपकी वीडियो है वो आपके सामने अपियर हो चुकी है, जो आपकी वीडियो क्रिएट हुई है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी वीडियो को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हर एक स्लाइड को आप पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीन 2 हो गया, तो मैं चाहूँ तो मैं सीन 2 को भी एडिट कर सकती हूँ, सीन 3 को मैं अलग से एडिट कर सकती हूँ, सीन 4 को मैं अलग से एडिट कर सकती हूँ। यहाँ पे आप कलर में भी चेंजेस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ट्रांजिशंस में भी चेंजेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टीव डॉट ए आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एआई टूल है अगर आप वीडियो बेस्ड एआई कंटेंट पे काम करना चाहते हैं। अब यहाँ से क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, आप म्यूजिक भी डाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे प्ले किया तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है वो 100% कंप्लीट होके आपके सामने प्ले हो जाएगी। तो
तो इस तरह से वीडियो है जो आपकी आउटपुट में अपेयर होगी, यानी जो फाइनल आउटपुट है आपका वीडियो का वो इस तरह से है। आप इसमें कोई भी चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर सकते हैं। आप ये वीडियो को अगर आपको पब्लिश करना है, आप यहाँ से इस वीडियो को पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप यहाँ पे बोले अपग्रेड एंड डाउनलोड। तो अगर आपको डाउनलोड करनी है किसी अदर फॉर्मेट में तो आप ये वीडियो यानी आप steve.ai को अपग्रेड करके ये वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा AI टूल था steve.ai, ये किस पे बेस्ड था? अगर आप वीडियो कंटेंट पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए steve.ai बहुत ही अच्छा एक टूल है, एक AI टूल है जिसको आप सीख सकते हैं। Now on which AI tool we are going to start? We are going to start on Bing AI tool, that is of Microsoft Bing। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हमें क्या देना है, हमको प्रॉम्प्ट देना है। तो ये सेम है चैट जीपीटी का, जैसे कि हमने चैट जीपीटी को यूज किया था सेम ही प्रोसेस होता है बिंग एआई में। यहाँ पे जो इनपुट है इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आपको इनपुट देना होता है एज इन टेक्स्ट की फॉर्म में, और आपके पास जो आपका आउटपुट है वो एज इन टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास आपका आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि जो मेरा पहला प्रॉम्प्ट है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो हम देखना चाहते हैं कि जो बिंग एआई हमारे पास आर्टिफिशियल टूल है चैट बेस्ड वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारा आ चुका है, आई एम एन एआई लैंग्वेज मॉडल हियर टू असिस्ट यू। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बिंग एआई में भी चैट बेस्ड कंटेंट पे अगर आपको काम करना है आप चैट बेस्ड कंटेंट पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ जो प्रॉम्प्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास हमें सजेशंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट प्रॉम्प्ट है कैन यू टेल मी अ जोक, हमने क्या किया, हमने इसको एज इन प्रॉम्प्ट दिया। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक आउटपुट आपको मिल जाएगा। सेम हम इसमें और भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉम्प्ट आपके पास आपका आउटपुट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बिंग एआई, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। So this is all about the today's session. What we have learned so far, we have learned what is generative AI, what is the difference between artificial intelligence and generative artificial intelligence, what are the different applications of generative artificial intelligence, what are the different tools of generative artificial intelligence. Some of the tools we have seen, they are ChatGPT, Bing AI, Gravity Write, steve.ai। तो इसके अलावा और भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं if we want to create personalized content like images, videos, text and audio. So this is all about the today's session. If you have any doubt in this session you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.